Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to your session of CDS through MCQs. So let's start with our science MCQs. So आज जो हम पहले question करने वाले हैं, let's have a look at that question. The first question that we have today is the property of sound waves that determines the pitch of the sound. So pitch basically क्या है? Pitch is the tone of the sound. Higher pitch or the lower tone, that is the pitch. So pitch जो है वो determine होती है by the frequency, by the rapidity of how the sound producing body vibrates. कितना frequently कोई भी sound producing body vibrate करती है उस frequency पर depend करेगी pitch of the sound. So higher the frequency of the vibrating body, higher is the pitch, right? So the pitch of the sound is determined by its frequency. Option A is the right answer. Let's move to the question number 2. An echo is heard after 5 seconds of production of sound which moves with a speed of 340 meters per second. So we are given here the time, that is 5 seconds, and we are also given the velocity of the speed of sound, that is 340 meters per second. So what is the distance of the mountain from the source of sound which produce the echo? यहाँ पर हमें distance निकालना है, right? So we know the formula, distance is equal to the speed into the time. So that is 340 into 5. So हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, so हमारा आंसर आ जाएगा 5 4s are 20 and 5 is 15, 1700. दिस इज मीटर्स, राइट? तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोमीटर्स में, बिकॉज हमारे आंसर्स जो हैं वो किलोमीटर्स में दे रखे हैं, सो दैट वुड बी 1.7 किलोमीटर. अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, ये वो डिस्टेंस है जो कि एको ने हमें ट्रेवल करके दोबारा सुनाई दिया है 5 सेकेंड्स बाद. यानी कि इफ दिस इज द सोर्स ऑफ द साउंड एंड दिस इज द ऑब्स्टेकल, तो जितना डिस्टेंस हमारे पास यहाँ आया है 1.7 किलोमीटर, ये ट्रैवल किया है इस तरफ एंड इस तरफ. सो दिस इज डबल द डिस्टेंस, राइट? जितना टाइम लगा साउंड वेव को ऑब्स्टेकल से टकराने और वापस हमारे कान तक पहुंचने के लिए. सो दिस डिस्टेंस हैज टू बी हाफ्ड. व्हाई? क्योंकि हमें यहाँ पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड. हमसे पूछा ये गया कि सोर्स ऑफ साउंड से माउंटेन कितनी दूर है, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है माउंटेन से तक जाने का और वापस ईयर तक आने का, एको हियर होने तक का जो डिस्टेंस था. सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हाउ फार इज द ऑब्स्टैकल और द माउंटेन फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी. सो वील डिवाइड इट एंड आवर आंसर वुड बी 0.85 किलोमीटर्स, राइट? 2 से इसे डिवाइड कर देंगे 1.7 को, सो 0.85 किलोमीटर इज द डिस्टेंस एट विच दिस माउंटेन इज सिचुएटेड फ्रॉम द बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड. Right? So option B is the right answer. Is that okay? So let's move ahead and have a third question. If the speed of moving magnet inside a coil increases, the electric current in the coil increases. So magnetic effect of currents, जहाँ पर due to the presence of electric current there is magnetism in a current carrying conductor, in a current carrying wire. That is, this question is based on magnetic effects. So जैसे जैसे जो है speed बढ़ेगी magnet की, वैसे वैसे electric current of the coil will also increase. So यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बढ़ा दें तो भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें देन ऑल्सो द इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज. ठीक है जी? सो दिस moving magnet, with the increase in the speed of moving magnet, the electric current increases. Option A is the right answer. ठीक, let's move to question number 4. Suppose voltage V is applied across a resistance R. So हमारे को voltage दे रखी है V and resistance दे रखी है R. Let V1 be V and R1 be R. फर्स्ट केस में द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस इज P. सो P यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू V² बाय R.
right? So power is equal to V square by R. This is in the first case. Now the same voltage V is applied across a parallel combination. Remember, अब यहाँ पर आ गया है parallel combination of 3 equal resistors, each of resistance R. तो यहां पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या निकालेंगे, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे. एंड इफ वी रिमेंबर द फॉर्मूला 1 by RP, लेट्स सी, हमारे पास फॉर्मूला है 1 by RP, दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R, क्योंकि 3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं ऑफ रेजिस्टेंस R. तो ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाता है R, 3 by R आ जाता है 1 by RP. तो मुझे रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालनी है. RP क्या हो जाएगी, RP इज इक्वल टू R by 3. रेसिप्रोकेट कर देंगे. ठीक जी, इतनी बात क्लियर होती है. हमारे को 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं इन पैरेलल, सो वहां पर वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, जो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे. एंड नाउ द रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी R by 3. अब क्वेश्चन क्या है हमारा, रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास, नहीं, दैट इज R by 3. देन द पावर डिसिपेटेड इन द सेकेंड केस. फर्स्ट केस में हमारे पास पावर आई थी, P1 आई थी V स्क्वायर बाय R. अब यही फॉर्मूला यूज करके हम P2 निकालेंगे. P2 अगेन वुड बी V स्क्वायर बाय R, पर R यहाँ पे क्या है, R by 3. सो R नीचे रह जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट. सिंपल मैथ्स फंडा, नीचे R by 3 है तो 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा. अब क्वेश्चन पूछा है देन द पावर डिसिपेटेड इन द सेकेंड केस विल बी. सो हमारा आंसर क्या है, 3 V स्क्वायर बाय R. बट वी नो दैट V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू P. इज दैट राइट, वहां पर P1 है. इसका मतलब जो सेकेंड केस में पावर डिसिपेटेड है दैट इज 3 टाइम्स द पावर डिसिपेटेड इन द फर्स्ट केस. ठीक जी, सो P2 इज इक्वल टू, P2 जो है वो आ जाएगा 3 टाइम्स P1. अगर हमने P लिया है तो P2 बिकम्स 3P. सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर. फिर से ध्यान से सुनिए, फर्स्ट केस में हमने सिंपल तरीके से सिंपल फॉर्मूला यूज करके P निकाला, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. अब हमसे सेकेंड केस में पावर पूछी गई है और यहाँ ये कहा गया है दैट देयर आर 3 रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस हियर, दैट कम्स आउट टू बी R by 3. अब इसे यूज करके एंड V यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड केस की पावर, दैट कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स द पावर डिसिपेटेड इन द फर्स्ट केस. सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर. इज दैट क्लियर? वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. A person rings a metallic bell near a strong concrete wall. He hears an echo after 0.3 seconds. So almost the same question. Time here is 0.3 seconds. If the sound moves with the speed of, we are given the speed that is 340 meter per second. How far is the wall from him? फिर से वही निकालना है, the distance of the obstacle or the wall here from the sound producing body और द साउंड सोर्स. सो डिस्टेंस निकालेंगे, जो डिस्टेंस आएगा वो डबल डिस्टेंस है जितना उस साउंड वेव ने ट्रैवल किया टू हिट दैट कॉन्क्रीट वॉल एंड कम बैक टू द ईयर. सो उसे क्या करेंगे, हम हाफ करेंगे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कॉन्क्रीट वॉल फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी. क्लियर? सो सिंपल तरीके से करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 340 इंटू 0.3. सिंपल मैथ्स लगा के इसको सॉल्व करेंगे. ठीक जी, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 102 मीटर, but this has to be halved in order to calculate the distance of the obstacle, right? So 102 का half, the answer would be option C, that is 51 meters. Is it clear? Simple echo formula, right? So we move on to the next question, question number 6.
Which one of the following statements is not correct? सही नहीं है. The sound wave in gases are longitudinal in nature. It is right. Sound waves having frequency below 20 hertz. 20 hertz से जिनकी कम frequency है, they are known as ultrasonic waves. So this statement is wrong. क्योंकि 20 hertz से कम जो sound जिनकी frequency है जिन sound waves की, they are called as infrasonic sound waves or infrasound, right? And जिनकी above 200 hertz है, they are called as ultrasonic waves. So हमारी statement B correct नहीं है, so हमारा आंसर भी यहाँ पर यही होगा. Which of the following statement is not correct? Let's read the statement C and D also. Sound waves having higher amplitudes are louder. Very right. Sound waves with high audible frequencies are sharp sound. जैसे हमने अभी pitch में किया था. ठीक है जी. Higher the frequency, more sharper is the tone. Right. So let's have a look at the next question. Two pieces of conductor of same material same है and of equal length are connected in series. Material same है दोनों wires का, equal length है और उन्हें connect किया गया है series में with a cell. One of the two pieces has cross-sectional area double that of the other. एक का एरिया जो है, अगर हम सेकेंड मान ले, A2 जो है that is twice A1. ठीक जी. मोटापा जो है गोलाई उस वायर की दैट इज मोर, थिकर है वायर, राइट. सो कितनी थिक है? डबल थिक है. इज दैट ओके? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ये कनेक्टेड है सीरीज में. सो इन अ सीरीज सर्किट, जब सीरीज सर्किट की हम बात करते हैं, करंट रिमेन्स द सेम, राइट. वायर सेम मटेरियल की है, सेम इक्वल लेंथ की है, नो डाउट उनका एरिया डिफरेंट है, बट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज आई रिमेन्स सेम. और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कनेक्शंस की बात करें, तो वहां पर V रिमेन्स सेम, राइट. द वोल्टेज रिमेन्स सेम. अब हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं. द थिकर वन विल अलाउ स्ट्रॉन्गर करंट टू पास थ्रू इट. ऐसा नहीं है. एज आई टोल्ड, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो द सेम करंट फ्लोज थ्रू बोथ द कंडक्टिंग वायर्स. Right? So this statement is not correct. The thinner would allow stronger current to pass through it. Again, not correct. C statement, same amount of electric current would pass through both the pieces, producing more heat in the thicker one. Statement D भी मैं अभी पढ़ रही हूँ. Let's read the statement D. Same amount of electric current would pass through both the pieces, producing more heat in the thinner one. अब थिक वन में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होनी है या थिन वन में, ये हम अभी कैलकुलेट करके देखेंगे. बट हमें यहाँ से ये पता चल गया, सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, आई रिमेन सेम. सो ईदर आवर आंसर वुड बी ऑप्शन सी और इट वुड बी ऑप्शन डी. सो लेट्स चेक. अब हमें पता है कि R इज इक्वल टू, अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. Right, this is the formula. Rho is resistivity. So area of cross section जिसका ज्यादा होगा, more होगा area, the resistance would be less since they are inversely proportional. R and A are inversely proportional, so more the area of cross section, lesser would be the resistance. ठीक है जी. रेजिस्टेंस लेस होगी, राइट. बट यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हीट की. सो हम हीट पर आएंगे क्योंकि हम करंट की यहां पर बात नहीं करेंगे. सीरीज में है, करंट रिमेन सेम. अब हम H पर आते हैं. H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. इफ I रिमेन सेम, T रिमेन सेम, देन H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अब रेजिस्टेंस किसकी लेस है? जिसका एरिया मोर है. ठीक जी. सो सेकेंड वायर जिसका एरिया मोर है, थिक वायर जिसका एरिया ज्यादा है, उसकी रेजिस्टेंस कम है, तो उसकी हीट भी कम होगी. बट इन केस ऑफ थिन वायर, अगर हम थिन वायर की बात करें, वहां पर एरिया क्या है? एरिया है लेस, रेजिस्टेंस है मोर. So H is directly proportional to R. More the resistance, more is the heat produced.
राइट. सो थिन वायर के अंदर जिसकी रेजिस्टेंस मोर है, दैट वुड प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी. सो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुड पास थ्रू बोथ द पीसेस प्रोड्यूसिंग मोर हीट इन द थिनर वन. और थिनर वन में मोर हीट क्यों है वो आप याद रखेंगे. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. यहां पर हमने ये फॉर्मूला यूज करना है हीट डिसिपेटेड का, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. आई रिमेन सेम बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. R इज रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से. More the area of cross section, lesser is the resistance, lesser is the heat produced. Less the area of cross section, more is the resistance and more is the heat produced. So thinner wire जहां पर area of cross section less है वहां पर resistance more होगी and thus there would be more heat produced in the thinner wire. So option D is the right answer. ठीक जी. Let's move to the next question. Question number 8. In sonar we use ultrasonic waves, right? So answer is A. Sound navigation and ranging used in ships to measure the distance of the sea floor. Ship wreckage को determine करने के लिए it is used. So sonar is used in a number of aircrafts also, right? So sonar uses ultrasonic waves. Clear? Now we move to question number 9. A device which is used in a TV set, computer, radio set for storing the electric charge is, that is a capacitor. So capacitor नाम ही तभी है because it has the capacity to store electric charge. So option C is the right answer. We move to the last question of this session, that is tungsten. Tungsten which is used in construction of filaments of electric bulb because of its. So tungsten हम इसलिए use करते हैं because it has a high melting point of about 3800 degrees Celsius, right? So it does not melt because of its high melting point. It is used in the construction of filament of bulbs. So option D is the right answer. So that's all for this session MCQs. I'll see you again. Until then, bye.